بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ بی اے انگلش پارٹ 1 کی پوئم کریں گے نیو ایئر ریزولوشن، جس کو لکھا ہے الزبتھ سیول نے۔ اس پوئم میں الزبتھ سیول کیا کر رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ وعدے کری، جیسے کہ پوئم ہے نیو ایئر ریزولوشن، اس کا مطلب ہے نئے سال کی آمد پر اپنی ذات کے ساتھ کچھ وعدے کرنا۔ نیو ایئر ریزولوشن، نئے سال کی آمد پر وعدے کرنا۔ ریزولوشن کا مطلب ہوتا ہے پرومسز، وعدے۔ تو یہاں پہ اس پوئم میں پوئٹس کیا کر رہی ہے، اپنی ذات سے کچھ وعدے کر رہی ہے کہ جو اس نے ماضی میں کچھ غلطیاں کی ہیں، اگر ماضی میں کچھ اس نے اچھا نہیں کیا یا اس نے کچھ کرنا چاہتی تھی وہ پورا نہیں کر پائے، تو نئے سال کی آمد پر وہ اپنے آپ سے یہ عہد کر رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہی ہے کہ اگلے سال میں وہ ساری مسٹیکس نہیں کروں گی، میں وہ ساری غلطیاں نہیں کروں گی، اور جو میرے کام ادھورے رہ گئے ہیں میں اگلے سال وہ لازمی پورے کروں گی۔ تو الزبتھ سیول کیا کر رہی ہے اس پوئم میں، نئے سال کی آمد پر اپنے آپ سے 3 وعدے کر رہی ہے۔ کون سے 3 وعدے، وہ ہم اس پوئم میں پڑھیں گے۔ وہ کہتی ہے I will drain long draughts of quiet as purgation. I will drain، میں پیوں گی، long draughts، لمبے گھونٹ، of quiet، خاموشی کے، as purgation، اپنی روح کی صفائی کے لیے۔ purgation کا مطلب ہوتا ہے روح کی صفائی، draught mean گھونٹ۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی کے لمبے گھونٹ پیوں گی اپنی روح کی صفائی کے لیے۔ یہ وہ کس چیز کے لیے کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ شاید اگر میرے سے پچھلے سال کوئی مسٹیکس ہوئی ہیں، کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کوئی غلطیاں کی ہیں، اگر کوئی میں نے برے کام کیے ہیں، ایول ڈیڈس کیے ہیں، کچھ بھی غلط کچھ کیا ہے، تو میں اپنے آنے والے سال میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اب میں نئے سال کے آمد پر اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ جو پچھلے سال میں نے غلطیاں کی ہیں وہ آئندہ سال میں بالکل بھی نہیں کروں گی۔ تو اس کی انگلش میں ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ انگلش میں ایکسپلینیشن کیا ہے، In these lines, Elizabeth describes her mental state and the way she would drink to purify her soul. اب وہ کیا کہہ رہی ہے، اپنے سول کو پیوریفائی کرنے کے لیے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں پیوں۔ یہاں پہ یہ ڈرنک کس چیز کے لیے وہ کہہ رہی ہے، وائن کے حوالے سے کہہ رہی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ اپنی سول کو، وہ اپنی روح کو پیوریفائی کرنا چاہتی ہے۔ She says that she will drink wine at night secretly. وہ کہتی ہے کہ میں رات کے وقت خاموشی سے کس کے گھونٹ پیوں، وائن کے۔ کس چیز کے لیے، اپنی روح کی صفائی کے لیے، میں اپنی روح کو تر و تازہ کرنا چاہتی ہوں۔ Poetess will have long draughts during night and will purge herself from all kinds of evils. وہ کیا کرنا چاہتی ہے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی ہے۔ This will assist poetess in helping other people because her own mind and spirit will be free from all types of evils. یہاں پہ اس نے یہ ساری وہی باتیں کی ہیں کہ وہ اپنی جو روح ہے اس کو تمام برائیوں سے پاک کرنا چاہتی ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے خاموشی کے گھونٹ پینا چاہتی ہے۔ خاموشی کے گھونٹ سے مراد وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ سے تنہائی میں رکھنا چاہتی ہے، اور رات کے وقت وہ وائن کے گھونٹ لے کے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہتی ہے۔ Long draughts of quiet، خاموشی کے لمبے گھونٹ، also suggest that Elizabeth will keep quiet most of time. یہ اس کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ الزبتھ اکثر کیا کرتی تھی، خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ This will be the best means for the purification of poetess soul, and it will help her in leading beneficial and successful life. She says she will talk less and hear more and change her life into betterment. وہ کیا کہتی ہے کہ اب میں وعدہ کرتی ہوں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں زیادہ خاموش رہوں گی اور زیادہ لوگوں کی باتیں سنوں گی، یعنی کہ کم بولوں گی اور زیادہ سنوں گی۔ کس چیز کے لیے، اپنی ذات کو چینج کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر رہی ہے کہ آئندہ سال میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جو میں نے پچھلے سال کیا ہے۔ نیکسٹ وہ کہتی ہے ریممبر، یاد کروں گی،
twice daily, रोजाना 2 बार, who I am, कि मैं कौन हूँ। वो अब क्या कह रही है कि वो 2 दफ़ा याद करेगी, सुबह शाम, दिन में 2 बार। किस तरह याद करेगी कि वो अपने आप को ये याद करवाएगी कि वो कौन है, उसकी क्या ख्वाहिशात है, उसने अपने आप के साथ क्या प्रोमिसेस किए हुए हैं, उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है। वो अपने आप को डेली अपने आप को रिमाइंड करवाएगी, अपने आप को मेडिटेट करेगी, और ये काम वो दिन में 2 बार करेगी। इस काम की वो प्रैक्टिस करेगी। किस चीज़ की प्रैक्टिस करेगी? कि अपने आप को याद करवाएगी कि उसने नए साल की आमद पर अपने आप के साथ कौन से वादे किए थे और वो आइंदा साल में क्या करना चाहती है। यानी वो इस चीज़ को अपना मकसद हयात बना लेगी, वो तय कर लेगी कि वो ज़िंदगी में क्या चाहती है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसका एम ऑफ लाइफ क्या है। वो अपने आप को ये हर वक्त रिमाइंड करवाएगी। तो इसके लिए वो क्या कह रही है, एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। इन द गिवन लाइन्स, दी गई लाइनों में, शी सेज, वो कहती है, शी विल रिमेंबर हर सेल्फ ट्वाइस डेली, वो अपने आप को रोज़ाना 2 दफ़ा याद करवाएगी। इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, सुबह शाम। एलिजाबेथ विल टेक इन टू कंसिडरेशन वट हर एम ऑफ क्रिएशन इज़, वो अपने आप को याद करवाएगी कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, सुबह शाम, कि वो क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसकी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए बनाई गई है, उसे दुनिया में क्यों भेजा गया है। शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, वो कोशिश करेगी किस चीज़ को समझने की, अपनी ज़िंदगी के मकसद को। वो अपनी ज़िंदगी को समझने के मकसद को अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करेगी कि उसको क्यों बनाया गया है, उसको दुनिया में क्यों भेजा गया है, और उसके ज़िंदा रहने का मकसद क्या है। शी मीन्स दैट शी शुड रिकॉग्नाइज हर सेल्फ विच विल हेल्प हर इन रिकॉग्नाइजिंग गॉड एंड लीडिंग लाइफ फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स। वो क्या करेगी कि वो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। वो ये सोचेगी कि अल्लाह ने उसको क्यों बनाया है, उसको दुनिया में क्यों भेजा है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखने के लिए वो डेली अपने आप को रिमाइंड करवाएगी कि वो क्या है, वो क्यों है, और वो किस लिए है, उसको किस लिए बनाया गया है, उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। वो ये सारी बातें अपने आप को दिन में 2 बार याद करवाएगी। अब नेक्स्ट है, वो कहती है, विल लाई ऑन नाइट्स इन द बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी एंड बी कंफर्टेड। अब बोनी आर्म्स का क्या मतलब है? सख्त बाजू, जिंदगी के सख्त बाजू, मतलब कि वो अपने आप को रिमाइंड करवाना चाहती है कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बहुत हार्श है। तो उसको सिंपल बनाने के लिए, उसको कंफर्ट करने के लिए वो क्या करेगी, वो मेहनत करेगी। विल लाई ऑन नाइट, हकीकत के चुभने वाले बाजू के साथ वो सोएगी। बोनी आर्म्स, सख्त बाजू, यानी कि हकीकत, सख्त बाजू से मुराद ये ज़िंदगी की रियलिटी है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। वो अपने आप को रिमाइंड करवाएगी कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। रियलिटी इज़ ऑलवेज हार्श, यानी कि वो अपने आप को प्योरीफाई करेगी, अपनी मिस्टेक से खुद को पाक कर लेगी। वो अपनी सोल को प्योरीफाई कर लेगी। किस तरह? रियलिटी ऑफ लाइफ के साथ वो सोचेगी, वो देखेगी कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो वो क्या कहती है, हकीकत के चुभने वाले बाजू के साथ वो सोएगी और राहत पाएगी। यहाँ पर रियलिटी को शायरा ने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन पेश की गई है। अब एक्सप्लेनेशन है इसकी इंग्लिश में। In these lines, the poetess expresses her resolution to welcome the new year with better understanding of life. तो इन लाइंस में वो क्या कह रही है, वो ज़िंदगी के मकसद को बेहतरी के साथ समझेगी और वो न्यू ईयर को वेलकम करेगी इस अहद के साथ कि आइंदा आने वाला साल उसके लिए बेहतर साबित होगा। वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेगी, वो अपनी माजी की गलतियों से सीखेगी और आइंदा साल में वो मिस्टेक्स नहीं करेगी। अगर वो बुरे काम कर चुकी है तो आइंदा साल वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। शी सीम्स टू बी सिक ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऐसा लगता है कि वो इस मॉडर्न लाइफ से उकता चुकी है, तंग आ चुकी है। वो इस मॉडर्न लाइफ से अब आज़ाद होना चाहती है, वो इस मॉडर्न लाइफ को छोड़ना चाहती है, वो इस जदीद दुनिया से आगे निकलना चाहती है।
She thinks that she noise, fever and fret of life keep us in constant mental tension. वो कहती है कि ये जो मॉडर्न लाइफ है हम लोगों को ज़हनी बेसुकूनी के अलावा कुछ नहीं देती है, हमें सिर्फ टेंशन देती है, स्ट्रेस देती है, डिप्रेशन देती है. तो ये इसमें कुछ नहीं है. वो ये स्ट्रेस से, ये डिप्रेशन से आज़ादी चाहती है, वो कुछ अच्छा करना चाहती है, वो अपने आप को आज़ाद करना चाहती है. इसमें कुछ ये भी कह सकते हैं वो नेचर के करीब होना चाहती है. शायद पोइटस को अब नेचर के करीब होना अच्छा लगता है, वो कुदरती मनाजिर को अपने अंदर समाना चाहती है, इसीलिए इस जदीद दुनिया से तंग आके वो आगे निकलना चाहती है. She wants to have a few moments to think about the purpose and mission of her life. In a state of mental peace, she will think of her sins and evil deeds. अपने ज़हन को पुरसुकून रखने के लिए वो सोचना चाहती है कि उसने क्या क्या बुरे काम किए हैं, उससे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और वो आइंदा ऐसे काम नहीं करेगी. She will be in a position to purify her soul of evil interest if she has ample time for rest and leisure. She wants to welcome the new year with the chaste mind. वो क्या करना चाहती है? खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ न्यू ईयर का वेलकम करना चाहती है और बिल्कुल अच्छे और साफ जहन के साथ न्यू ईयर में एंटर होना चाहती है. वो अपनी सारी माजी की गलतियों को पीछे छोड़ना चाहती है और आइंदा साल में वो अपने आप को अच्छे कामों की तरफ माइल करना चाहती है. अगर उसे माजी में जो भी हो गया, उससे कोई भी मिस्टेक हो गई है, वो उसने कुछ भी किया है, तो वो आइंदा साल में वो सब कुछ नहीं करेगी. इसलिए वो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है कि आइंदा साल उसने ये काम करने हैं. उसने कौन से 3 काम करने हैं? उसने अपने आप के साथ 3 वादे किए हैं कि आइंदा साल में मैंने अपने आप को इस तरह रखना है. सबसे पहले उसने क्या किया है कि वो अपने आप को रिमाइंड करवा रही है कि मैं खामोशी के लंबे घूंट पीऊँगी, यानी कि मैं अपने रूह की सफाई करूँगी, सोल प्योरिफिकेशन करूँगी. फिर वो कहती है सेकंड उसका क्या प्रॉमिस है कि वो अपने आप को रिमाइंड करवाएगी डेली 2 दफ़ा सुबह और शाम के उसके क्या क्या रेजोल्यूशंस है, उसके क्या क्या इरादे हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना है. थर्ड में वो कहती है कि वो अपने आप को इस हकीकत से रिकॉग्नाइज करवाएगी कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और वो रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी और वो बहुत खुले दिल के साथ अपने आप को लोगों के साथ घुलने मिलने में अपने आप को एक्टिव करेगी. वो आगे निकलने की कोशिश करेगी और वो क्या कहती है कि मैं कम बोलूँगी और ज़्यादा सुनूँगी ताकि मुझे कुछ नॉलेज हासिल हो सके और मैं दूसरों के काम आ सकूँ.